علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہم ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے اپنی ٹرین آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ پہلی بار تھا جو مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب اس لیے محسوس ہو رہا تھا کیونکہ آج عید کا دن تھا۔ عید سے پہلے ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمیں ٹکٹس مل جائیں، لیکن ہمیں ٹکٹس نہیں ملے، اور لے دے کے ایک عید کا دن ہی تھا جس میں ہمیں ٹکٹس ملے تھے۔ میں نے اماں سے کہا بھی تھا کہ اماں، بہت عجیب لگتا ہے کہ ہمارا عید کا دن بھی ٹرین میں گزرے، لیکن اماں کو تو ہر حال میں اپنے میکے جانا تھا۔ اماں میکے جانے کے لیے اس قدر پرجوش تھیں کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ عید کا دن ہے یا 14 اگست کا۔ اماں کو تو بس اپنے میکے والوں سے ملنا تھا جن سے وہ پچھلے 20 سالوں سے نہیں ملی تھی۔ اماں نے ابا سے پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر والے ان سے ناراض تھے، اور ابا کے گھر والے ابا سے ناراض تھے، لیکن دونوں نے سب کی ناراضگیوں کی پرواہ کیے بغیر شادی کر لی تھی اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ابا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 2-3 سال تو یوں ہی گزر گئے۔ پھر اچانک اماں کو اپنے میکے کی یاد ستانے لگی، اور سوچا کہ اب تو ابا کی محبت کی زنجیر بھی ان کے پیروں میں نہیں ہے، تو ملنے میں کوئی حرج نہیں۔ ننیال سے ہمارا رابطہ وغیرہ تو کوئی تھا ہی نہیں، لیکن اماں کو اپنے گھر کا پتہ یاد تھا۔ المختصر، جن کے گھر ہم جا رہے تھے انہیں علم ہی نہیں تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اور کسی محرم کے بغیر ہمارا یہ پہلا سفر تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ عید کے دن یہ سفر ہمیں کرنا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر تو جیسے ہو کا عالم تھا، گنتی کے چند لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ مجھے تو بس یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ آج عید کا دن ہے اور سب ہنسیں گے ہم پر کہ عید کے دن ہم سفر کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتی رہی کہ کوئی اور بھی خدا کرے موجود ہو، ورنہ ایک تو ہم 3 خواتین اور نامحرم کے بغیر سفر، میں، میری اماں اور میری چھوٹی بہن۔ خیر، ٹرین آ گئی اور ہم اس میں سوار ہو گئے، اور حسب توقع مجھے مایوسی ہی ہوئی۔ ٹرین میں کوئی بھی نہیں تھا۔ راولپنڈی اسٹیشن سے جب ٹرین چلی تو تھوڑا آگے جا کر ایک بابا جی ٹرین میں سوار ہوئے، تو میری جان میں تھوڑی سی جان آئی کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے جو عید کے دن سفر کر رہا ہے۔ میرا اعتماد بابا جی کو دیکھ کر تھوڑا بحال ہوا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر کے نظارے کر رہی تھی۔ کافی سارے بچے تھے جن کے ہاتھوں میں سوئیاں تھیں، اور وہ محلے میں پہنچاتے جا رہے تھے۔ زیادہ تر بچے ہی نظر آ رہے تھے جو تیار ہو کر ایک گھر سے دوسرے گھر سوئیاں پہنچانے کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ میں نے بیزاری سے کھڑکی سے نظریں ہٹا لیں اور شہاب نامہ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ ابھی میں نے 1-2 صفحات ہی پڑھے کہ لاہور کا اسٹیشن آ گیا۔ کھڑکی سے ہی مجھے ایک نوجوان دکھائی دیا جو موبائل فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ اس کے کاندھے پر بیگ لٹک رہا تھا۔ پورے لاہور اسٹیشن میں وہ ایک ہی مسافر تھا جو شاید ہماری طرح عید کے دن سفر کرنے والا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ہماری ہی بوگی میں سوار ہو چکا تھا اور اپنی سیٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں تھوڑی پریشان ہوئی کیونکہ وہ ٹکٹس کو ہاتھ میں پکڑے سیٹ نمبر کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا ہمارے قریب آ چکا تھا، تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک نظر سیٹ کی طرف دیکھا اور پھر میرے بالکل سامنے کھڑکی والی سائٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے اس طرح بالکل سامنے بیٹھنے پر میں الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے کوہنی سے اماں کو ہلایا اور اماں کے کان میں سرگوشی کی کہ اس لڑکے کو بولیں کہ پوری بوگی خالی ہے، کہیں بھی جا کے بیٹھ جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمارا منہ چڑھائے۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتی، اس لڑکے نے بہت ہی شائستہ انداز میں اماں سے سلام کیا اور فوراً سے بیشتر اماں کو لاہوری چرگا کھانے کی بھی آفر دے دی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اماں کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ لاہوری چرگے کا سن کر اماں کے منہ میں پانی آ گیا اور فوراً سے اماں نے حامی بھر لی اور اس لڑکے نے لاہوری چرگا آرڈر کر دیا۔ میں تو اماں کا منہ تکتی رہ گئی
बस फिर क्या था, अम्मा उस लड़के का शजरा नसब पूछने लगी। लड़का भी अम्मा से हंस हंस के बातें करने लगा और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लड़का अम्मा की कोई बिछड़ी हुई सहेली है। मैं तो पहलू बदलती जा रही थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं चाहती थी कि ये लड़का मेरे सामने से गायब हो जाए, लेकिन मेरी अम्मा जो बातों की शौकीन थी और वो लड़का भी उन्हीं के मिजाज का था, दोनों में थोड़ी ही देर में खूब बन गई थी। अम्मा, क्या आप पराये लड़के से इतना फ्री हो रही हैं? एक तो हम अकेली हैं, हमारे साथ कोई मर्द भी नहीं है, और आप इतना फ्री हो रही हैं, मैंने आहिस्ता आवाज में कहा था। लेकिन उस लड़के ने सुन लिया। देखिए मोहतरमा, ये हमारा और आंटी जी का आपस का मामला है। आप शहाबनामा पर गौर व फिक्र करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। हाँ तो आंटी जी, क्या बता रही थी आप कि जब आप मरी सैर को गई तो आगे क्या हुआ? उस लड़के ने मुझे मुखातिब किया और फिर फौरन से मुझे नजरअंदाज करके एकदम ही मेरी अम्मा से महवे गुफ्तगू हो गया, जो उन्हें मरी का किस्सा सुना रही थी। इतनी बड़ी बोगी है, सारी सीट्स खाली हैं, आप कहीं भी जाके बैठ जाएं, यहां बैठना जरूरी तो नहीं है। मैंने भी उनकी गुफ्तगू में खलल डालकर उनका मजा खराब करना चाहा। देखिए मोहतरमा, मैं उसूलों का बहुत पाबंद हूं और मेरा उसूल है कि जिस नंबर की सीट मिली है उसी सीट पे बैठूंगा, उस लड़के ने कहा और फिर से मेरी अम्मा की जानिब मुतवज्जे हुआ। मैंने शहाबनामा सामने टेबल पर पटक दिया और खिड़की की तरफ फिर से रुक करके बैठ गई। बेटा, क्या तुम्हें भी ईद से पहले टिकट्स नहीं मिले? अम्मा ने उस लड़के से दरियाफ्त किया। नहीं आंटी जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ईद के दिन के ही टिकट्स मिले और मैंने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है अगर ईद का एक दिन ट्रेन में गुजार लिया जाए। यह भी एक नया तजर्बा होगा और इंसान को जिंदगी में हर किस्म का तजर्बा करते रहना चाहिए। जब मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो अपने बच्चों को ये ट्रेन वाली ईद की कहानी जरूर सुनाऊंगा, उस लड़के ने शोख अंदाज में कहा। मैं झुंझलाहट का शिकार हो रही थी। बेटा, तुम लाहौर में रहते हो? अम्मा ने सवाल किया। नहीं आंटी जी, मैं लाहौर में नौकरी करता हूँ। मेरा आबाई घर कराची में है। मैं कराची से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन नौकरी लाहौर में मिल गई है, इसलिए नौकरी के सिलसिले में यहाँ रह रहा हूँ। अब ईद की छुट्टियां मिली हैं तो सोचा एक दो दिन घर में गुजार लूं। वो लड़का बातें अम्मा से कर रहा था और देख मेरी तरफ रहा था। उसकी नजरें अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। वैसे नायाब को बड़ी घबराहट हो रही थी कि पूरे ट्रेन में ईद के दिन हम अकेले हैं, लेकिन तुम्हें देखकर थोड़ा हौसला मिला कि हम अकेले नहीं हैं। अम्मा ने मुस्कुराते हुए उसी तरीके से मेरा नाम भी बता दिया। इसके पीछे अम्मा का जो मकसद था, मैं वो फौरन से समझ गई थी कि इसकी नौकरी का सुन के अम्मा ने दिल ही दिल में उसको अपना दामाद बनाने की ठान ली थी। अम्मा, हम अकेले नहीं हैं, देख नहीं रही, वो बाबा जी भी हमारे साथ सफर कर रहे हैं। मैंने दूर सोए हुए बाबा जी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो उस लड़के की हंसी छूट गई। मैंने कोई लतीफा सुनाया है? मैंने गुस्से से उस लड़के को मुखातिब करते हुए कहा तो उसने कहा कि नहीं, ये लतीफे से भी ऊपर के लेवल की कोई चीज थी। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। बेटा, तुम्हारा नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। अम्मा अब उसका शजरा नसब पूछ रही थी। पाकिस्तानी माओं की यही आदत मुझे जहर लगती है कि जहां नौकरी वाला लड़का देखा नहीं, वहां बिछी चली जाती हैं। मेरा नाम शहीर है। उसने अपना नाम बताया तो अम्मा बिला वजह उसके नाम की तारीफ करने लगी। ट्रेन मुल्तान के स्टेशन पर रुकी तो वो लड़का नीचे उतरा और थोड़ी देर बाद मुल्तान के सोन हलवे के डब्बे के साथ ट्रेन में दोबारा से सवार हो गया। आंटी जी, आज ईद का दिन था और हमने तो अपना मुंह मीठा किया ही नहीं। ये लें, मुंह मीठा करें। उस लड़के ने हलवे का एक पैकेट अम्मा की तरफ बढ़ाते हुए कहा और अम्मा ने अपना हक समझकर वो पैकेट वसूल कर लिया। ईद मुबारक आपको भी।
मुंह मीठा कर लें। उस लड़के ने दूसरा पैकेट मेरी जानिब बढ़ा दिया और अजीब से अंदाज से कहा तो मैंने पहले पैकेट को देखा और फिर गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं और फिर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। पैकेट भी उसके हाथ से नहीं लिया था। ईद के दिन हर कोई खुश होता है सिवाय शैतान के। वो दोबारा से अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, तुम मुझे शैतान कह रहे हो? मैं फौरन आप से तुम पर आ गई। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस बचपन में सुना था कि ईद के दिन शैतान कुछ नहीं खाता, रोजा रखता है। आपने हलवा नहीं खाया तो वो अपना जुमला अधूरा छोड़कर अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जे हुआ। तो थोड़ी देर बाद मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया। मैंने अम्मा के हाथ से हलवा का डब्बा लिया और खाना शुरू कर दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ना मैं शैतान हूं और ना आज मेरा रोजा है। ये थी तो बचगाना हरकत, लेकिन पता नहीं क्यों अब मेरा दिल भी बच्चा बनने को चाह रहा था। थोड़ी देर पहले तक जो मैं अम्मा और उस लड़के की बातों से बेजार थी, अब उन्हीं से लुत्फ अंदोज होने लगी थी, लेकिन शक्ल से जाहिर नहीं कर रही थी। आंटी, आपको देखकर लगता है कि आप जवानी में बहुत खूबसूरत रही होंगी। पता नहीं आपके बच्चे किस पर गए हैं। उस लड़के ने शरारती अंदाज में मेरी तरफ देखे बगैर ही कहा तो मैं चौंक गई। बात का दूसरा मतलब लिया जाए तो वो ये कहना चाह रहा था कि अम्मी खूबसूरत है और हम नहीं। मैंने पहले तो कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, फिर जब्त कर गई और खामोश रही। थोड़ी देर यूं ही सोचती रही, फिर उठकर बोगी के दरवाजे की जानिब चल पड़ी, जहां से खुली फजा को महसूस किया जा सकता था। सूरज ने आसमान से अपनी चादर खींच ली तो अंधेरा पर फैलाए हर शय को ढांप गया। हसीन रात का मंजर बहुत दिलफरेब था। अचानक मेरी नजर सामने नस्ब आईने पर पड़ी तो मैं आईने के करीब आई और अपना अक्स देखने लगी। मुझको कुछ देर पहले उस लड़के की कही हुई बात याद आई तो मैं परेशान होकर गौर से अपने नुकूश देखने लगी। इतनी हसीन तो हूं मैंने अपने चेहरे का जायजा लेते हुए हल्की सी आवाज में कहा। तो वो लड़का किसी बोतल के जिन की तरह नमूदार हुआ, जी बहुत हसीन है आप। उसने बिल्कुल मेरे कान के करीब सरगोशी की तो मैं उछल पड़ी। देखा तो वो बिल्कुल मेरे अकब में खड़ा था और उसका चेहरा मुझे अपने पीछे आईने में दिखाई दिया। तुम मेरे पीछे यहां भी आ गए? मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा और उससे फासले पर जाकर खड़ी हो गई। नहीं, आपके पीछे नहीं, मैं तो बस हवा खाने आया था। वो दूसरी तरफ वाले दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और टेक लगाए दोनों हाथ सीने पर बांधे बाहर देखने लगा। तुमको लगता है कि हम अकेली खवातीन हैं, हमारे साथ कोई मर्द नहीं, तो तुम हमें अजीबो गरीब तरीकों से हरासा करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए ऊंची आवाज में कहा। हालांकि अब मुझे उस लड़के से कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उस मुख्तसर सी मुलाकात में अंदाजा हो गया था कि वो एक खानदानी लड़का है और बेजरर है। हरासा? आपको पता भी है हरासा का मतलब क्या होता है? मैं जानता हूं आपके साथ कोई मर्द नहीं है, इसीलिए मैंने आंटी से बातें करके उनको एहसास दिलाना चाहा कि मैं उनके बेटे जैसा हूं और इस सफर में उनके साथ ऐसे ही हूं जैसा एक बेटा होता है। मैं इस मुख्तसर से सफर में आपका मुहाफिज बनना चाहता हूं। और आप? ऐसा कहता हुआ वो रुका नहीं, वहां से चला गया। वो नाराज हो गया था। मेरा दिल एक लम्हे को डूब कर उभरा था। मैं थोड़ी देर वहां खड़ी रही और फिर दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गई। मैंने देखा कि वो दूर जाकर सो गया था या फिर सोने की अदाकारी कर रहा था। उसके बाद उसने कोई बात नहीं की। रात 1:30 बजे कराची स्टेशन आ गया। हम ट्रेन से उतरे और सवारी तलाश करने लगे। वो लड़का इस कदर नाराज था कि जाते जाते देखा भी नहीं हमें। एक लड़का उसे बाइक पर लेने आया और वो उस लड़के के साथ जल्दी से बाइक पर सवार हो गया और मेरी नजरों से ओझल हो गया।
500 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी। अम्मा की आवाज पर मैं ख्यालों से बाहर आई, जो रिक्शे वाले से किराए पर बहस कर रही थी। अम्मा, जो मांगता है दे देना। एक तो रात का वक्त है और हमारे साथ कोई मर्द भी नहीं है, मैंने अम्मा से आहिस्ता से आवाज में कहा। ना जाने क्यों अब मुझे खौफ महसूस हो रहा था। जब तक वो लड़का साथ था तो कोई खौफ नहीं था। मुझे अफसोस होने लगा, इतना अच्छा लड़का था, वरना तो अक्सर गुंडे मवाली टाइप के लड़के ही मिलते हैं दौराने सफर। खैर, हम रिक्शे में सवार हो गए। 40 मिनट लगे थे अम्मा के मैके के घर तक। थकन से बुरा हाल था। जैसे ही बेल बजाई तो दरवाजा खुला। सामने खड़े लड़के को देखकर तो मुझे यकीन आ गया था कि दुनिया गोल है, लेकिन इतनी ज्यादा गोल होगी ये अंदाजा नहीं था। आंटी आप? बेटा तुम? मेरी अम्मा और उस लड़के के मुंह से एक साथ ये अल्फाज निकले थे। मालूम हुआ मौसूफ मेरे मामू का इकलौता चश्मो चराग है। बस फिर क्या था, मैं थी और सामने जज्बाती मंजर था। सालों के शिकवे, एक पल में आंसू, दूसरे पल में खुशी। सालों बाद अम्मा का उनके भाई भाभी बहनों से सामना हुआ था। मैं और मेरी बहन एक तरफ खड़ी ये मंजर मुलाहिजा फरमा रही थी। अरे मुकद्दस, ये तुम्हारी बेटियां हैं ना? इधर आओ बेटा, दूर क्यों खड़ी हो? बड़े मामू को शुक्र हम नजर आ गई थी। फिर हम दोनों बहनों को खास प्रोटोकॉल मिला। इतनी रात को सारा खानदान जाग रहा था। मालूम हुआ कराची वाले रात जागते दिन सोते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है, ये तो मेरे शहीर की ही दुल्हन बनेगी। देखना मुकद्दस, अब इनकार ना करना। मुमानी की बात सुनकर मुझे 1000 वॉट का जैसे करंट लगा था। अरे इनकार कैसा बहन, शहीर तो सफर में हमारे साथ था। मैंने तो उसी वक्त फैसला कर लिया था। अम्मा के दिल की बात जुबान पर आ गई। सामने शहीर अब्रू उचकाकर शरारती अंदाज में मुझे देख रहा था और मैं तो हैरान थी सब पर। इतनी तेजी से तो रुपए की कीमत नहीं गिरती जितनी तेजी से मेरा रिश्ता तय कर दिया था इन सब ने। ईद का पहला दिन तो गुजर गया था, लेकिन अगली सुबह सब ने मिलकर फिर से ईद मनाई। इतना भरा पूरा खानदान मैंने पहली बार देखा था। बस कमी थी तो अब्बा की। लगे हाथों मामू मुमानी ने मुझे मंगनी की अंगूठी भी पहना दी। थोड़ा शर्मा लो, मुझे शर्म आए जा रही है लड़का होकर। तुम कैसी लड़की हो, मंगनी के नाम पर मिस्टर बीन वाले तासुरात दे रही हो? शहीर ने शरारती अंदाज में कहा तो मुझे शर्माना याद आया, वरना सब इतना तेज तेज चल रहा था कि हैरत के मारे मुझे शर्माना ही भूल गया था। ईद मुबारक। अब तो मुबारकबाद कबूल कर लो, शहीर ने कहा तो मैंने मुस्कुराते हुए जवाब में उसे भी मुबारकबाद दी। ईद की छुट्टियां खत्म हुई। मुझे यूनिवर्सिटी जाना था और छोटी बहन को कॉलेज। वापसी के सफर में शहीर फिर से हमारा हम सफर था और बहुत हसीन सफर था। वो लाहौर उतर गया, उसे जॉब पर जाना था। हम आगे इस्लामाबाद चले आए। जाते जाते शहीर ने कहा कि बड़ी ईद पर बारात लाऊंगा, तैयार रहना। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये ईद वाकई मेरे लिए मुबारक साबित हुई थी। दोस्तों, ये थी आज की खूबसूरत सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।